First of all, a very good afternoon to all of you. Uh, I must extend my gratitude to Shri Amit Amla ji and the entire Broadway team for calling me here, for giving this opportunity to me to meet you, interact with you, and also be a part of this celebration in which we are celebrating success of many of our young colleagues who will be joining the J&K Administrative Service this year. तो सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद. अल्लाह ताला जो है, मे गॉड, मे अल्लाह मेक दिस as a source of, I would say, जन्नत, source of blessings and peace to you and your parents. मुझे लगता है जब हमारी सिलेक्शन हुई थी तो my grandfather, I often talk about him. जिस दिन घर गए थे, then he, after, there are a lot of people come to your home और बहुत एक माहौल सा होता है. So then in the evening he made me sit with him. And then he said, जब आप लोग पढ़ाई करते हो, and he has seen me work very closely right from बचपन से ही. जब पढ़ाई करते थे 10th में, it used to happen कि मैं पढ़ाई करता हूँ तो वो 2 बजे आते थे कि तुम अभी तक सोए नहीं. So then I used to, sometimes I shut the light off कर देता था रूम की, whenever I would hear the noise of the door when he would come out of his room. So then एक उन्होंने बड़ी एक अच्छी चीज़ बताई जो मुझे लगता है, विच आई एम नॉट एबल टू फॉरगेट एवर, कि इतनी मेहनत आपने करी, ये मेहनत दिस शुड बी अ बाइस ऑफ जन्नत फॉर यू. ऐसा कभी ना हो कि इतनी मेहनत आपने जो की है पढ़ाई के दौरान, ये कभी भी आपको जहन्नम की या जो है, इट शुड नॉट टेक यू टुवर्ड्स दैट पाथ ऑफ हेल. तो द सेम एडवाइस आई वुड वांट टू पास ऑन टू यू कि एक जब हम लोग पढ़ाई कर रहे होते हैं, जब हम लोग प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, जस्ट लाइक ऑल ऑफ यू, उस समय ये अरमान होता है यार कहीं से हो जाए. रैंक तो बात की बात है, काडर तो बात की बात है, इवन कहीं दूर किसी स्टेट में मिल जाए, we would go there. But then the moment we join service, and immediately there are a lot of people who come to your home, और इतना सब कुछ होता है, you are raised to that pedestal as if आपने you have done something out of the world. But the real story and real responsibility begins after that. तो मुझे आज ये महसूस होता है कि जितनी शायद प्रिपरेशन के दौरान मेहनत करनी पड़ती है, आज उससे 3 गुना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, both in terms of the pressures that you handle and also in terms of the actual hours of work that you put in. हम लोग इन दिनों जब फॉर एग्जांपल यहाँ स्मार्ट सिटी का काम चल रहा होता है तो रात में आना पड़ता है, रात के 12 बजे 1 बजे तक वी हैव टू बी देयर ऑन साइट, वी हैव टू कीप ऑन मॉनिटरिंग थिंग्स. वो नहीं करेंगे तो तब तक नहीं होता है. सो दैट वाज द लिटिल बिट ऑफ अ कॉन्टेक्स्ट दैट आई वांटेड टू गिव. तो क्योंकि आज हमारे साथ काफ़ी सारे बाकी स्टूडेंट्स भी हैं, आई एज्यूम दैट आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो इस समय, whether it's for the UPSC or for our JK Administrative Service. So मैं थोड़ा सा I'll take some minutes here with the permission of Amit ji. So 10-15 minute I'll little bit talk about how I used to prepare. With this intention, maybe there may be something in it which you may find useful. और फिर 15-20 मिनट उसके बाद I'll try to speak about the kind of work what we are doing and how in my limited capacity how I am trying to prioritize those things. So it will give you both flavor of before the exam and after the exam kind of a perspective. So does this fit with the head also? Yes. So that will be a little more comfortable. Is it audible and better? Yeah. Okay. So सबसे पहले थोड़ा सा मैं 10-15 मिनट अपने प्रिपरेशन के बारे में बताऊंगा, how I used to prepare. My journey for civil services starts in the last year of my college. Initially I was in Government Medical College Jammu. I had joined MBBS for some time. I was there for 7-8 months. And it is a talk of year 2009. तो उन दिनों हमारा IIT JEE और EIEEE 2 सेपरेट एग्जाम हुआ करते थे, और JK CET अलग होता था, और बाकी AIIMS and every state used to have their own separate exam. So I had initially joined the medical college, Government Medical College Jammu,
I was there for some time, and then after that हमारे IIT JEE का result आया था. Then I joined the IIT. So I got an opportunity to see both the medical as well as the engineering for some time. फिर when I was in the IIT में जब हम पढ़ रहे थे engineering में पढ़ाई कर रहे थे तो it was the last semester last year I got more into civil services and it has also a little story to it. हमारा हम जब 7th semester में थे तो we used to get something called a PPOs, pre-placement offers. That means a lot of companies, MNCs would come to colleges and they would hire you before the degree is complete. So I had got a PPO from one MNC and they had their headquarters in Mumbai. So we had this 7th semester और 8th semester के हमारे बीच में हमारी एक gap हुआ करती थी and between we used to have around 2 months of a vacation period. उसी vacation period में they had called us to Mumbai for an orientation program. So I went there to Mumbai to attend that orientation program. So वहाँ हम लोग 4-5 दिन थे. I could see that working in a corporate sector, working in a private sector. So it's a very reputed multinational company. A lot of talented people work there. So after 5 days, when I was coming back, I stopped in Delhi. My cousin used to work there. So मैं उनके घर पे था और उस cousin का एक cousin वाजीराम में coaching करता था. So he also happened to be accidentally at the same place that day. So I somehow मैंने जो उनके study material था जो वो class जाते थे और papers थे I happened to gloss over those. तो मुझे लगा यार this is something which probably I should have a look at that. And that day I stayed in Delhi only and I visited Karol Bagh, Rajendra Nagar, went to a lot of institutes and tried to explore किस तरीके से किया जा सकता है, how do we go forward, and without thinking much I started preparation from those 2 months. उसके बाद I did not come back to home और क्योंकि हमारी 2-1.5 महीने की छुट्टी थी I stopped in Delhi तो 2 महीने में मैंने वहाँ पे preparation शुरू कर दिया. And at the end of the 2 months we had a semester to attend in our college and I went back to college. So those 2 months, initial 2 months in Delhi, they gave me a little bit of a perspective of किस तरीके से क्या study material है, कौन सी किताबें लेनी है. There was a very good teacher who suggested that it's very important to go through the entire syllabus first, go through the previous papers, then plan your make a proper timetable, follow that timetable, and so on and so forth. And that those 2 months somehow set a little tone for my preparation. Then I went back to college. और कॉलेज इसी दौरान मैंने दिल्ली में एक I had joined a test series in Delhi. So I used to come in the weekends. So I used to get a bus in the evening on maybe Saturday or Friday, and then come to Delhi, write an exam, and go back in the Sunday night, reach college. So college हो गया, and by the end of the college we had our prelims. उस साल it was 2014 because of elections in 2014. The prelims had been postponed. So it used to be before that, prior to that, prelims होता था April में. But that year prelims, I think it was in August or September. It had been delayed because of the elections. So that gave me that little bit of a time to prepare a little bit more. And I appeared in that exam and I got a rank of 500 and I think around 50 something. I don't remember it exactly. It was somewhere around 500 odd. So जब हमने score card देखा, तो my score card was I was having very good marks in general studies, and I had little less score in my philosophy optional. I had taken philosophy as an optional, and I had in fact जो select हुए थे शायद उनमें से सबसे कम marks philosophy में, क्योंकि एक ये भी था probably I did not have much time to prepare for philosophy. So that's how it went. And then at the end of the college, I then started preparing fully. और उस टाइम पे I started working on my philosophy optional again, GS वगैरह improve किया है, and that is when I got that rank 2 and joined the IAS. So that was in the year 2015. So now दोनों attempts में there was a little difference. पहले वाले attempt में we used to have CSAT and CSAT marks were also counted as part of your prelims marks. In this second attempt, CSAT became the optional, but only the general studies marks were counted.
So that's the bit of a story. Now, what are the important points which I think, which I found very useful? पहले के attempt के comparison में what helped in the second attempt, how I could make such an improvement from 500 rank to rank 2. What was the broad reason to that? सबसे पहले I believe it is very very important to be very thorough with understanding the exam. और एग्जाम को अंडरस्टैंड करने के लिए बेस्ट तरीका होता है एग्जाम का सिलेबस. सिलेबस जैसे आप जब आप नोटिफिकेशन आप लोगों ने देखी होगी यूपीएससी की, इट इज वेरी इलॉबरेट. इट टॉक्स अबाउट जब आप प्रीलिम्स का देखते हो, प्रीलिम्स पेपर 1, प्रीलिम्स पेपर 2, पेपर 1 के भी कौन कौन से टॉपिक्स हैं. सिमिलरली मेंस का एग्जाम देखते हो, मेंस में इट इज इवन मोर डिटेल्ड. सो यू अगेन हैव टू look at that detailed syllabus. And my sense that if there is any one thing that you should mug up, that has to be the exam syllabus. Now, why is it important? एक number one, it demystifies the exam for you. कभी जब आप शुरू करते हो तो ऐसा लगता है पता नहीं कौन सी टॉप होगी, पता नहीं कौन सा रॉकेट साइंस होगा, whether I'll be able to do it or not. पर जब आपने पूरा एग्जाम का सिलेबस एक बार दिमाग में रख लिया होता है, you get a broad perspective of थिंग्स कि इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें कोई जो है हार्डकोर इकोनॉमिक्स नहीं है, इसमें कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है. इट इज मोर अबाउट जनरल स्टडीज, इट्स मोर अबाउट व्हाट अफेक्ट्स अस इन डे टू डे लाइफ. सो वो एक सबसे पहले डीमिस्टिफिकेशन होती है, आपको पता चलता है मुझे क्या करना है. नंबर 2, it also gives you an idea of how much time and effort it would require from your side. आपको पता है कि अच्छा पेपर 1 में these are the ये मुझे टॉपिक्स हैं, ये मेरे सब टॉपिक्स हैं, पेपर 2 में ये मुझे टॉपिक्स. यू आर एबल टू प्लान योर टाइम एंड एनर्जी इन अ मोर एफिशिएंट वे. आपको पता है आपको यहाँ से दिल्ली जाना है और दिल्ली का रास्ता ये है, आपने गूगल मैप पे देखा है. इट मेक्स इट इजियर फॉर यू. यू नो वेयर यू हैव टू स्टॉप, वेयर यू हैव टू टेक अ लंच ब्रेक, वेयर यू हैव टू टेक अ power nap and then go on. So it makes it easier for you to plan. Number 3, जो मुझे सबसे ज्यादा बेनिफिशियल लगा, it makes your study also, your preparation also smart. Now how does it do so? अगर आप पेपर 1 देखोगे, पेपर 1 में there is one particular portion in the syllabus called social issues. So social issues में you talk about what social issues the society is facing. अगर आप पेपर 2 देखोगे, there is one segment called social justice. So essentially what is happening is paper 1 you talk more about the problem. Paper 2 में it more talks about the solution. So जब आप फिर आंसर बनाते हो, चाहे आप वो पेपर 1 के बनाओगे, पेपर 2 के बनाओगे, your answers become more comprehensive. Similarly, एक और एग्जांपल, अगर आप एथिक्स का पेपर देखोगे, so क्वेश्चन सब्जेक्टिव होते हैं, आपके पास कंटेंट इट्स मोर एब्स्ट्रैक्ट. उस कंटेंट को थोड़ा सा मोर ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए आपको एग्जांपल्स बहुत हद तक मदद कर देते हैं. यू टॉक अबाउट हैप्पीनेस. नाउ हैप्पीनेस इज अ वेरी एब्स्ट्रैक्ट थिंग. नाउ व्हेन यू bring this happiness to something very objective, say I got up early in the morning, wished my father, so that is happiness for me. या इसी तरीके से फिर जब आप इस सब्जेक्टिविटी को ऑब्जेक्टिविटी की तरफ लेके आ जाते हो, सो द कंटेंट दैट यू हैव रेड इन योर पेपर 1, इन योर पेपर 2, इन योर पेपर 3, दैट बिकम्स द मटेरियल फॉर दैट एक्सरसाइज. सिमिलरली आप अगर एसे लिखते हो, एसे बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है पूरे यूपीएससी एग्जाम के लिए, इवन कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए, क्योंकि उसमें द वेरिएबिलिटी ऑफ मार्क्स इज वेरी हाई. जीएस पेपर 1 में somebody may get 90, somebody may get 120, somebody may get 30, but essay it is possible somebody is getting 50 marks, another one is getting 150 marks. So the kind of the span of marks when it comes to essays is very high. Again, जब आप essay बनाते हैं, where is the content that is going to come for your essays? It comes from the syllabus that you have read in your GS 1, 2, 3, 4, in your prelims, the content that you have read in your optional exam. So उस essay के लिए अगर आपको कंटेंट भी देखना है, you can just close your eyes for a minute, you take any essay, what you have read in paper 1, 2, 3, 4, you can आप easily उसका एक पूरा फॉर्मेट, पूरा एक पैटर्न बना सकते हैं. So अपने जो आपका कंटेंट है, इसको बेस्ट किस तरीके से यूज किया जा सकता है, that idea again you can get when you have a good hold of that of the exam syllabus.
Number two is very related to is the old papers. ये ओल्ड पेपर मुझे लगता है 10th के एग्जाम में भी काम आते थे, 12th में भी काम आते थे, और इवन इन योर कॉलेज लाइफ दिस मस्ट हैव बीन यूजफुल. they play a very crucial role in your understanding the exam and your preparation. कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं. क्वेश्चन में जब आप फॉर एग्जांपल कोई भी आप हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ते हैं, यू आर रीडिंग, many times you miss out the important facts, या आप वो चीजें रिटेन नहीं करते हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं. लेकिन जब आप उसी के क्वेश्चंस देखते हैं कि पिछले 10 साल में 20 साल में कौन से क्वेश्चंस आ गए होते हैं, यू आर एबल टू identify, you are able to get best out of the content that you read. So again, that would be my good advice, that जितने पुराने पेपर हैं, whether they are prelims or mains, you should not miss out practicing even a single question. उसको हर किसी क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करें. मैं आपको इसी में अपनी फिलॉसफी की एग्जांपल दे देता हूँ. नाउ ऑप्शनल सब्जेक्ट में जनरली पेपर 1 में इन मोस्ट ऑफ द ऑप्शनल सब्जेक्ट्स देयर इज लॉट ऑफ रिपीटिशन. व्हाई इज द रिपीटिशन? बिकॉज पिछले एक चैप्टर है, इसमें जितने भी नॉर्मली एग्जामिनर क्वेश्चन बना सकता है, उसमें पिछले 20 साल में तो उन्होंने वो पूछ लिए होते हैं, पिछले 25 साल में तो वो पूछ लिए होते हैं, एंड द नंबर इज अगेन गुड. सो वो क्वेश्चंस की जब आप प्रैक्टिस करते हो, व्हेन यू प्रिपेयर आंसर्स फॉर दोस क्वेश्चंस, आपका ब्रॉडली चैप्टर का सारे पोर्शंस टेक केयर हो जाते हैं. Same, this was my example, my experience in my philosophy paper. Next, in the second attempt, what I did was I got hold of the previous 20-25 years booklet, and I wrote answers to each and every question in that booklet. So एक क्वेश्चन का आंसर. Some answers could be open book. आप कभी जैसे क्वेश्चन देखा आपने, you can open a book and write a nice answer to it. Make a notebook for it. What I realized जब एग्जाम आया, एक क्वेश्चन, I would say 80% of the questions were as it is, जिनकी प्रैक्टिस मैंने की थी, जिनके आंसर्स beforehand I had prepared them well, I had to just jot them down. तीसरी एक और चीज क्या होती है, जब आप पेपर प्रैक्टिस करते हो, आपके वो I would say those neural links become very strong. आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ती है, things flow on their own, क्योंकि आपने वो एक बार लिख दिया होता है. So my advice again for all of you would be that जितने भी subjective questions हैं, उन questions को भी जितना ज़्यादा हो सके prepare करके जाएं. अब एक chapter आप 50 बार पढ़ें और उस chapter के questions आप एक बार लिखें, I would say it is one and the same. उसे probably it might be more beneficial than just reading the chapters again and again, rather than writing the answers. Writing the answers would always be more beneficial to you. Same goes with prelims. जब आप prelims एग्जाम देखते हैं, अगर 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हर कोई कर लेता है, then there will be another 20-25 questions जो किसी को नहीं आते हैं. Now maybe the kind of question or the particular questions could vary, but the number roughly stays same for everyone. 20-25 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो पता होता है सर से ऊपर ही चले जाते हैं. The game is in that middle 30-40 questions which decide whether you are in and whether you are out. उसमें क्या होता है, क्वेश्चन होगा, आपने पढ़ा है, हो सकता है 3 बार पढ़ा हो, 4 बार पढ़ा हो, लेकिन जो नीचे ऑप्शंस हैं, you get messed up in the options. I would say that this year's prelims is a classic example to that. How you have read almost हर किसी ने वो क्वेश्चन पढ़े हैं, टॉपिक भी पढ़े हैं, but then you get confused with the dates, you get confused with the finer details. तो उसके लिए how do you prepare for that? Only way is practicing questions. So अगर आपने चैप्टर पढ़ा हो, नहीं पढ़ा हो, पीछे जो क्वेश्चंस हैं अच्छे से उनको प्रैक्टिस करें. It will be a game changer for you. Prelims के पर्सपेक्टिव से particularly. Only way to score good in preliminary examination is to practice questions beforehand. Practice as much as you can. तीसरी एक और चीज है which is I would say current affairs. अब इन दिनों भी जब आप देखते हैं जो पेपर का पैटर्न which is getting changed almost every 2 years, 3 years, there is one still commonality in all. There is a huge premium on the current affairs.
इनफैक्ट आपके हिस्ट्री के काफी क्वेश्चंस दे आर आस्क्ड प्रिसाइजली बिकॉज दे हैव बीन समवेयर इन द न्यूज बिकॉज ऑफ वन रीजन और द अदर। आपका साइंस एंड टेक पूरा है, आपका इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस, इकोनॉमिक्स के, इनफैक्ट इकोनॉमिक्स, लॉट ऑफ questions even in the mains in your economics come precisely from your current affairs. So my advice on that would again be कि current affairs को अपना एक strong point बनाना है. Now what do I mean by a strong point? Number one, you should read one newspaper every day. And reading a newspaper, my sense is that its requirement cannot be replaced by reading notes. सो आप एक न्यूज़पेपर और चाहे जो आपको इंस्टीट्यूट में करंट अफेयर्स का मटेरियल मिलता हो, यू कैन रीड द टू. उनकी दोनों की दे टुगेदर मेक ए गुड कॉम्बिनेशन. उसका रीजन दो तीन है. एक, जब आप मैगजीन या कोई भी आपका मंथली बुकलेट होता है, इट कैन नॉट बी एज एग्जॉस्टिव एज 30 न्यूज़पेपर्स. नंबर वन कि 30 न्यूज़पेपर में कंटेंट बहुत होगा. एक जो आप मटेरियल बनाओगे, इट विल कवर योर मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट्स उससे टेक केयर हो जाएंगी. दूसरा इंपॉर्टेंट चीज न्यूज़पेपर पढ़ने से ये होता है, यू डोंट हैव टू मग अप थिंग्स. अब उसका व्हाट डज इट मीन? फॉर एग्जांपल, देयर इज अ सर्टेन केस गोइंग ऑन इन द सुप्रीम कोर्ट. अगर आप एक महीने में न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, यू कैन सी द डिटेल्स ऑफ इट एवरी डे. जब आपने 30 दिन पढ़ा होता है तो ये आपके जहन में एक सिस्टमैटिकली अच्छे तरीके से बैठ जाता है, तो आपको उसको उतना ज्यादा रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ती है. और एग्जाम में, खास तौर पे मेन एग्जाम में, व्हाट हैपेंस इज, इतना प्रेशर होता है, इतना टाइम कंस्ट्रेंट होता है, यू आर नॉट एबल टू रिकॉल. आपने पढ़ के गए होते हैं, वहां ब्लैकआउट हो जाता है. लेकिन ये चीजें विच यू हैव एक्चुअली विटनेस्ड एंड एक्सपीरियंस्ड, दे कम इजीली इन योर सबकॉन्शियस माइंड. वो आपके दिमाग में तुरंत आ जाती हैं. We used to have, I always give this example. हम लोग स्कूल टाइम में होते थे, there used to be something called the National Children's Science Congress. बनाते थे. उस कांग्रेस, नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस का एक टैगलाइन होता था. It used to say, I read, I forget. I see, I remember. I do, I understand. This actually sums up the things for us. जब हम पढ़ते हैं, you will invariably forget. So nobody has that, maybe except a few people who have that super human memory. You will tend to forget, भूल जाओगे. But when you see something happening, it stays in your mind for a longer time. So this is what newspaper does for you. वो न्यूज़पेपर ऐसे चलता है as if तुम्हारे सामने वो कहानी unfold होती है. You become part of that. See, अगर हम लोग we talk about the economic reforms that happened in 90s, liberalization, globalization, etc. One particular budget which is so famous. Now, somebody who was around that point of time, जिसने उसने actual में देखा तो नहीं होगा. He must have seen it in the news, but he can tell you every nitty-gritty of that historic event. सिमिलरली, जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ने से एक तो अंडरस्टैंडिंग भी बेहतर होती है. यू गेट डाइवर्स पॉइंट्स ऑफ व्यू. काफ़ी चीज़ें जो मैगजीन में स्किप हो सकती हैं, वो आप यू आर एबल टू कैप्चर देम आल्सो. और इसके साथ में जो आप इवेंट्स, जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स होते हैं, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, फॉलो एंड ट्रैक देम. और मेंस एग्जाम के लिए पर्टिकुलरली, या एसेज के लिए, या इंटरव्यूज के लिए, दिस बिकम्स एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट. सो आई वुड इंसिस्ट अपॉन दिस कि हर दिन अपना एक जो है न्यूज़पेपर, इट कुड बी हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, और विच एवर वन यू आर रीडिंग, वन नेशनल न्यूज़पेपर, एंड देन वन जो भी आपका करंट अफेयर्स का मटेरियल है, इंस्टीट्यूट का मटेरियल है, यू फॉलो दैट. और इसमें एक और अक्सर हम लोग गलती करते हैं कि यू गो टू स्टॉल जहाँ पे मैगजीन्स बिकती हैं, तो यू हैव n डिफरेंट मैगजीन्स. अगर आप इस महीने के 5 मैगजीन उठाएंगे, एवरी मैगजीन विल हैव अ डिफरेंट कंटेंट. सो आपको लगता है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेट मी टेक ऑल 4. सो वो गलती नहीं करनी है. यू टेक वन न्यूज़पेपर, वन मैगजीन, और वन द स्टडी मटेरियल दैट यू हैव हियर, यू फॉलो दिस थ्रू आउट द ईयर. क्योंकि जो ए काइंड ऑफ मैगजीन या ए काइंड ऑफ मटेरियल फ्रॉम ए इंस्टीट्यूट होगा, that content may be included in, say, nth month of the material that you are reading. So अगर
एक में हर किसी मैगजीन में इन द एंड एक साल के साइकिल में द कंटेंट इज गोइंग टू बी ब्रॉडली द सेम. इट इज पॉसिबल दैट द months may change. So you stick to one particular source of material and a newspaper and follow it religiously. और एक चीज जो मुझे पर्सनली बहुत बेनिफिट किया है कि करंट अफेयर्स को यूज करना है मोर लाइक अ टूल किट. आप जब न्यूज़पेपर पढ़ते हो, आप जब करंट अफेयर्स पढ़ते हो, ये जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन पूछा जाएगा. It may happen that 90% of what you read may not come as a question in either mains or in prelims. But the content that you have read, you have to understand and learn this technique of using this content in different places. It is like how, for example, आपने कहीं कोई अर्बन रिफॉर्म के बारे में कोई पर्टिकुलर चीज पढ़ी, आपने कहीं कोई पर्टिकुलर केस डिस्कस हो रहा था उसके बारे में पढ़ा, कोई पर्टिकुलर सोशल इंसिडेंट कहीं हुआ आपने उसके बारे में पढ़ा था, उसके बारे में क्वेश्चन नहीं आया. लेकिन पेपर 1, 2, 3, 4 ऐसे समवेयर देयर वुड बी क्वेश्चंस जिसमें यू कैन यूज देम एज एग्जांपल्स, जिसमें यू कैन यूज देम टू सबस्टेंशिएट. हम लोग हंगर की बात करते हैं या से somebody talks about say poverty. Now saying that this particular place is poor is one thing, and substantiating it with maybe some example or some report, something which you might have read elsewhere, makes it more substantiated, makes it more different. So एक बंदे ने अगर लिखा कि एग्रीकल्चर में हमारी ये प्रॉब्लम है कि मार्केटिंग अच्छे से नहीं कर पाते हैं, दूसरे बंदे ने लिख दिया कि एग्रीकल्चर में हम लोग मार्केटिंग नहीं कर पाते हैं, इसकी वजह से हमारा जो ऑर्गेनाइज सेक्टर्स के थ्रू जो मार्केटिंग होती है, दिस इज ओनली दिस % ऑफ एग्रीकल्चर अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट. यू सबस्टेंशिएटेड. हेल्थ इंडिसेस होते हैं, क्या है हेल्थ इंडिसेस? सो यू नीड टू डेवलप दिस टूल किट from your newspapers, from your current affairs. जो टूल किट आप अपने मेंस के आंसर्स में you will use them wherever you think they are appropriate. You will use them in your essays. So उस टूल किट को अपने पास हमेशा रखना है. और then develop this mental maths also within mental map in your कि आपको social sectors में, major economic sectors के बारे में, major social issues के बारे में, you should also be aware of some basic facts and figures. Now, why are they important? Again, they tell you the depth of the problem. Somebody talks about unemployment. Now, unemployment, okay, what kind of unemployment are we talking about? So, you talk about the rate of unemployment. You talk about labor force participation rate. So, वो चीजें आपको न्यूज़पेपर में या जो भी आप ये पढ़ते हो करंट अफेयर्स, उसमें कहीं ना कहीं मिल जाएंगी. So, my suggestion would be, you develop एक छोटी सी अपनी नोटबुक बनाए, maybe 10, 15, 20 pages, जिस 15-20 पेज में आपके पास ये टूल किट हो, जिस टूल किट में यू विल पुट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स, इंपॉर्टेंट नंबर्स, इंपॉर्टेंट फिगर्स, जो आप यूज करोगे अपने मन मुताबिक जहां पे आपको आपके एग्जाम्पल में समझ. दैट विल मेक अ डिफरेंस बिटवीन अ क्वेश्चन जिसके आंसर में 5 नंबर सबको आते हैं, अगर आपको 7 नंबर चाहिए, दिस इज व्हाट इज गोइंग टू मेक अ डिफरेंस. ठीक है. सो करंट अफेयर्स पे यू शुड फोकस हेवीली ऑन. I would say this was one of my strength points. I had done current affairs quite well. इसी के साथ I had practiced questions as much as possible. तीसरा, again, syllabus और पुराने papers, I had a thorough grasp of that. That is why probably I could, in a very short span of time, I could prepare for the exam, I could clear it also. So, ये चीज़ मैं again repeat करना चाहूँगा. And fourth and probably a final thing along with it, जो प्रैक्टिस में, आई कम बैक टू द प्रैक्टिस अगेन, कि जब आप क्वेश्चंस आंसर लिखते हो, इज देयर अ पेपर ऑफ ये मार्कर और समथिंग, कुछ भी, इफ दिस वर्क्स दैट विल आल्सो डू. I'll show you something. इसको दिमाग में रख लेना. This will help you crack your means. ठीक है. Venn diagram हम लोग हर कोई पढ़ते हैं. So this is the question. Okay, कोई भी क्वेश्चन अब उठा लो. ये क्वेश्चन जो बना है, this is what is expected by the examiner. आपको क्या लिखना है. और जब हम अपनी शुरुआत करते हैं आंसर राइटिंग की,
और जो हम लोग आंसर इनिशियली लिखते हैं, हमारा आंसर ऐसा होता है। मुद्दे की बात ये होती है, फालतू चीजें बहुत सारी होती हैं। और अगर ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हमें मिलते हैं 1.5 आउट ऑफ 10, क्योंकि ओनली दिस वाज द पोर्शन व्हिच वाज टू द पॉइंट। जब आप प्रैक्टिस करते हो धीरे धीरे, यू मोस्ट ऑफ द पीपल रीच समवेयर हियर 3 आउट ऑफ 10। फिर एक नेक्स्ट कम्स पीपल जो पहुंचते हैं यहाँ 5 आउट ऑफ 10, सो दे गेट एन इंटरव्यू कॉल। ठीक है, नाउ द गोल इज टू रीच समवेयर हियर, maybe let's say 7 out of 10 or 8 out of 10, and these people qualify, and if they get a good score in interview, they get a top rank. ठीक है, and this happens only when you practice. जब आप प्रैक्टिस करते हो कि कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन में अगर आप देखोगे जनरल टेंडेंसी, व्हेन यू स्टार्ट आप बहुत इंट्रोडक्शन बहुत लंबा लिखते हो। से कोई भी एग्जांपल इज से लेट्स से आवर रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर in sync with the modern times or in sync with the year 2023. Now somebody would start saying पहले agriculture ये है, agriculture वो है, agriculture ये है, so he spends lot of times talking about what is agriculture and what we are doing, when the question is about agriculture reforms that have been done and whether they are in sync with the requirements or demands of today. So मुद्दे की बात पे पहुंचना है, और आप लोग मुद्दे की बात पे कैसे पहुंचोगे, दैट इज व्हाट दिस प्रैक्टिस विल हेल्प यू। सिमिलरली जब आप एग्जाम ये लिखते हैं, सो जब हम फॉर एग्जांपल अगर आपके 20 क्वेश्चन होते हैं या 25 क्वेश्चन होते हैं मेंस के पेपर में, सो यू हैव रफली अराउंड 7 और 9 or 7 minutes per question रफली, है ना। अक्सर क्या होता है, अगर 20 क्वेश्चन है तो जब आप कहानी लिखने लग जाते हो तो इनिशियली यू राइट बिग आंसर्स टू दी, सारा ज्ञान पहले वाले क्वेश्चंस में चला जाता है। सो इवेंचुअली 20 में से आप 14 पे अटक जाते हैं, 15 पे अटक जाते हैं, फिर लास्ट के 5 क्वेश्चन आपके रह जाते हैं। वो 5 रह गए तो यू आर इन एनी केस आउट ऑफ द रेस। Now, how do you ensure कि 20 में से you write answers to 20, all 20, and the quality of your last answer, the 20th answer, 20th question is not much different than the quality of your first answer? That happens when you practice. ठीक है, तो एक तो पहला किस चीज से आ जाएगा, the first thing will come when you start practicing individual questions, and this thing will come when you start practicing full length papers. सो ये बहुत जरूरी है। अगर आपको कुछ भी नहीं करना है, ज्वाइन अ टेस्ट सीरीज, अटेंड दैट टेस्ट सीरीज विदाउट फेल। आपने अगर पढ़ाई की है फाइन, नहीं किया है तो भी जाके पढ़ाई करें, तो भी जाके आप जो है टेस्ट लिखें। जितना आपको टेस्ट से फायदा होगा, जितना आपको टेस्ट लिखने से फायदा होगा, उतना फायदा आपको साल भर के क्लासेस से, साल भर की पढ़ाई से नहीं होगा। ठीक है, सो दैट इज what you should do. Rest, I'm sure एक last point before we close this portion is timetable and timeliness. So अक्सर फिर से क्या होता है कि you know say let this be days and this be time. This is what happens. Human nature, हमारा जो एक मोटिवेशन लेवल होता है, it is never same. कभी बड़ा इंसान मोटिवेटेड फील करता है, you want to keep on going. मोटिवेशन आ गई, something one starts to work. अगर 1 घंटे है तो 18 घंटे पढ़ने लग जाएंगे। Then eventually what happens? अगले दिन कुछ होता है, this finally dies down. किसी दिन डांट पड़ी तो वापस। This should not happen.
होना क्या चाहिए, इफ इट इज 10 hours whatever, जो भी डिपेंडिंग ऑन दिस, इट हैज टू बी कंसिस्टेंट. सो कंसिस्टेंसी इज द की. कंसिस्टेंट, कि आज मुझे 10 घंटे पढ़ना है, कल आफत आ जाए, तोप आ जाए, जो भी हो, टुमारो आई विल अगेन स्टडी फॉर 10 hours. इसको मैं नीचे होने नहीं दूंगा. आज मुझे, मैं गया एग्जाम लिखा, आई गॉट गुड मार्क्स, आई एम मोटिवेटेड टू लर्न बेटर. कल बिल्कुल फेल, कुछ नंबर नहीं आए, 100 में से 10 नंबर आए, बट आई विल स्टिल डू दिस 10 hours. ये आपकी तरफ से कमिटमेंट रखनी है. नाउ दिस कंसिस्टेंसी डज नॉट कम बाय डिफॉल्ट. ये ऐसे नहीं होगा कि भाई आज मैं 10-10 घंटे रोज पढूं. इट विल कम विथ routinizing certain things. रूटीन हम बोलते हैं ना, रूटीन comes from the fact that this is how we are programmed as humans. रूटीन का मतलब क्या हुआ, अगर आपका दिन है, you have to fix certain things so that you don't have to put an effort in planning. समझे? रोज प्लान करना पॉसिबल नहीं होता है, रोज टाइम टेबल बनाना पॉसिबल नहीं होता है. इट इज इम्पॉसिबल टू स्टिक टू दैट. यू हैव टू डेवलप हैबिट्स. जैसे मेरी एक आदत थी, आई यूज्ड टू गेट अप 7 o'clock 7 AM इन द मॉर्निंग. वो 7:30 7:45 में रीडिंग रूम चला जाता था ना. जब 10 दिन किया, उसके बाद ये आदत हो जाती है. So first thing I would do at say 8 o'clock when I would start, I would do the newspaper from 8 to 9:30. Newspaper. और इसी के notes भी I used to make notes also between this time. Now हर दिन क्या हुआ, न्यूज़पेपर का टाइम फिक्स हो गया. अब क्या न्यूज़पेपर या इसका, अगर आपने एक दिन सोचा मैं बाद में पढ़ूंगा, ये वो बाद में सॉरी कभी नहीं आता है. फिर अगले दिन आपका शाम बच जाते हैं, तो अच्छा मैं फिर कल पढ़ूंगा या कल पढ़ूंगी, व्हाटएवर. सो रूटीनाइज सर्टेन थिंग्स इन योर डेली टाइम. सिमिलरली अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, हैव सम फिक्स टाइम फॉर दैट क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस. प्रेफरेबली इन द मॉर्निंग जब आप शुरू करते हो, बिकॉज एनर्जी लेवल्स आर हाई. उसमें वो काम रखने चाहिए विच यू फाइंड लिटिल डिफिकल्ट एंड अनईजी टू डू. हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ना आसान है, न्यूज़पेपर में थोड़ा एफर्ट लगता है. न्यूज़पेपर में आपको नोट्स बनाना है. प्रैक्टिस लुक्स लिटिल स्कैरी. मुझे भी डर लगता था, सबको डर लगता है. जिस चीज से आपको डर लगता है, जो चीज आपको थोड़ा सा मुश्किल लगता है, कीप दैट द फर्स्ट थिंग पार्ट इन द मॉर्निंग. उससे क्या होगा, एक तो मुश्किल काम आपने अपनी हाई एनर्जी टाइम में निकाल दिया. दूसरा, once you have read the newspaper, once you have done the practice, if it is 2 o'clock, आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट डेली आएगा कि मैंने कुछ किया. पढ़ के चैप्टर खत्म करके सेंस ऑफ अचीवमेंट नहीं आता है. प्रैक्टिस करके, और जब आप कोई टेस्ट पेपर सॉल्व करते हो, टेस्ट पेपर सॉल्व करने के बाद वो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आता है. जब आप कभी टेस्ट देने आते हो, यहाँ क्लासेस में आते होंगे या कहीं पे, फिर वापस आके आपको ऐसे एक्चुअली यू फील यू हैव अकम्प्लिश्ड समथिंग. सो रूटीनाइज सर्टेन थिंग्स. और फिर शाम को फिर यू कैन, बाकी जो है आपकी कौन सी बुक आपको किस दिन पढ़नी है, यू कैन प्लान दैट अकॉर्डिंग टू योरसेल्फ. एक देयर आर 2 ways जनरली पीपल डू. कुछ लोग करते हैं, कुछ दिन हिस्ट्री पढ़ेंगे, फिर कुछ दिन ज्योग्राफी पढ़ेंगे. माय एडवाइस ऑलवेज वुड बी टू रीड थिंग्स इन पैरेलल. उससे क्या होता है, आपने अगर हिस्ट्री पढ़ा, क्लासेस में इट वुड नॉट बी पॉसिबल. जो क्लासेस यहाँ होंगी उसमें इट वुड बी प्रॉब्ली कि कुछ दिन आपका हिस्ट्री चलेगा, उसके बाद कुछ दिन उनको टॉपिक्स भी खत्म करने होते हैं, कुछ दिन आपका शायद ज्योग्राफी. आई एम नॉट श्योर हाउ इट इज हियर, बट irrespective of how it is in the class, when you are studying at your home, you ensure there is continuity. अगर आपने हिस्ट्री 20 दिन पहले पढ़ी है, 20 दिन के बाद पढ़ोगे तो भूल जाओगे सारा. लेकिन 1-2 दिन या इमीडिएट आई वुड से साथ में पढ़ते रहोगे, कंटिन्यूटी मेंटेन करोगे, सो इट विल बी इजी फॉर यू टू डू दिस. और लास्ट में अगेन नोट्स, दे सेव योर लॉट ऑफ टाइम एंड लॉट ऑफ एफर्ट. आपका जो मटेरियल है, फॉर एग्जांपल आप आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हो, यू मे बी रीडिंग फ्रॉम 5 sources.
इट विल नॉट, यू विल नेवर गेट द सेम टाइम जो ही आप एग्जाम के नजदीक जाते रहोगे. एवरी डे यू विल हैव मोर कंटेंट टू रीड एंड लेस टाइम अवेलेबल टू यू. सो उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए जितने ज्यादा नोट मेकिंग अभी से करोगे उतना ज्यादा आपको आसान हो जाएगा. खुद के नोट से एक तो याद भी रहता है, जहन में भी जल्दी आता है, अंडरस्टैंडिंग भी बेहतर होती है, और उन नोट्स को रिवाइज करना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है. सो अभी अगर आपको अपने पूरे बुक से जो आपने जितना भी कंटेंट उससे आप अगर आप पढ़ते हो, इफ यू रिवाइज फ्रॉम, इट मे टेक यू किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को पूरा दिन, बट अगर आपने नोट्स बनाए हैं, वो नोट्स से करने में इट विल टेक यू 2 आवर्स. फिर जब नेक्स्ट रिवीजन करोगे इन्हीं नोट्स से, इट विल टेक यू मे बी हाफ एन आवर. यू विल रीच ए पॉइंट एक्चुअली जहां पे यू विल जस्ट फ्लिप योर बुक और आपके दिमाग में रहता है पूरी चीजें जस्ट बाय फ्लिपिंग. अच्छा, दिस इज व्हाट आई हैव टू डू. एंड आई हैव सीन इट माई सेल्फ ऑल्सो कि पूरे चैप्टर, पूरे जितना पेपर है, पूरे पेपर का सिलेबस एंड नोट्स आई कुड रिवाइज देम विद इन द ब्रेक बिटवीन फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर. कि इतना आपने नोट्स इतने बनाए होते हैं, उनको इतनी बार आपने रिवाइज किया होता है. सो इट सेव्स यू अ लॉट ऑफ टाइम. सो इफ आई हैव टू समराइज एंड सम अप, so broadly I would say, number 1, syllabus को अच्छे से मैप करो, अच्छे से दिमाग में. Number 2, practice old papers या model papers, whatever you have. Number 3, I would say notes and revision. Number 4, I would say current affairs. Again, reading is not enough. Notes and make a toolkit of it. And last one, mock test. ये जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा कर लेना. मुझे this is what I think is this sum and summary of what I used to do. It maybe बाकी साथी हैं, maybe they will also share over a period of time things with you how they did it. Maybe कुछ चीजें वो they might have done it in a better way, but this is what I found really useful when it comes to broad preparation. ठीक है, so I think we have already exceeded a lot of time. So we'll close this portion here and just give you a little overview after this. Ki once you have done your exam, once you have joined in your academy, you get trained for a couple of years. That training is again very very important. कि उस ट्रेनिंग में आपको सब कुछ पढ़ा दिया जाता है. एक लॉयर 3 साल या 5 साल में पूरा लॉ पढ़ता है. You have to read all those everything in law, CRPC से लेकर IPC से लेकर CPC से लेकर all the individual laws also within that period of time. You have to economics है, आपको economics के लिए well versed होना पड़ता है. Public policy होती है, government programs होते हैं. You have to learn all of that. Media management, you are taught everything. वो भी discipline, सुबह 5 बजे उठना है, दौड़ भाग करना है. That again is taught to you in the academy. They do a lot of बड़ी मेहनत वो लोग करते हैं, बहुत पर्सपेक्टिव्स देते हैं. इनफैक्ट जब हम लोग इमीडिएटली निकलते हैं एकेडमी में, इनिशियल लगता है कि यहाँ पता नहीं कितना फायदा था यहाँ आने का, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम व्हेन यू सिट बैक समवेयर, कहीं कोई इशू आता है, यू आर इजीली एबल टू ग्रास्प इट. दो इमीडिएटली इंसान को वो समझ नहीं होता है हाउ कुड आई अंडरस्टैंड इट, बट एट द बैक ऑफ द माइंड इज दैट ट्रेनिंग. वो जो पीछे आपने पढ़ा है, जो वहाँ पे आपने IPC, आपको इंडिविजुअल सेक्शंस यू मे नॉट रिमेंबर, बट यू नो द ब्रॉड इश्यूज, यू नो द ब्रॉड कंसर्न्स. किसी ने कहीं गड़बड़ की होती है, you may not remember the section of CRPC which covers it or section of IPC which covers it, but you know this is a crime, and there would be some section in IPC or some section in CRPC which covers that. So that is again which becomes very important. And finally जब आप आते हो फिर से वही चीज, हम सब लोग इसी स्ट्रगल से, इसी मेहनत से आए हैं कि we should be able to do something good, we should be able to make some kind of difference wherever we are. और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. कई बार मुझे लगता है काफ़ी सारे sometimes we are not able to clear the exam, but again exam
या क्लियर करना, IAS या KAS ज्वाइन करना ही दुनिया नहीं है. People, I have seen people who are literally, regretting why they joined, and I have also seen people who are really happy and satisfied after having joined. So this is just one of the many different professions that one can choose to. But हाँ, यहाँ इसके भी फायदे बहुत हैं. People, you're given that respect and regard by the people. Whether it is due or not due, that's a different question. But at the same time, आपके पास बहुत opportunity होती है मेहनत करने की, काम करने की. Again, ईमानदारी, honesty is, it's become a cliche, but जितना ज़्यादा इस पे बोला जाए, जितना ज़्यादा इसकी importance होती है, the power of a civil servant comes from his integrity. मैं आपको एक example बता देता हूँ. For example, we are working on Lal Chowk. Now, when we go to the site, when I go to the site, I'm able to shout or I'm able to do the contractor or anyone. But where is that power to shout or power to, take him to task? Where does it come from? It comes from the fact that one's integrity is beyond doubt. One has ensured that, bhai, mujhe kaam se matlab hai. This is what we have to do. Similarly, when you have people in the chain of command, when you have people down the line, you're able to work them not because you're their superior, but because of your integrity. And so this is again, I think, something I want to say, that the power of the civil servant does not come from the pen. It does not come from the legal, or it does not come from the authority or the orders which has appointed him. It simply comes from his own hard work and own integrity. वहाँ से ये नीचे फ्लो होता है. सो और हम जब पब्लिक सिस्टम्स में होते हैं, everyone knows everything about everyone. आपके मैं SMC में हूँ, सो जो हमारे अगर 4,000 सफाई कर्मचारी हैं, 3,000, every सफाई कर्मचारी knows how his or her commissioner is. Everyone knows. ये इस तरीके का we live in those public setups. So मैं फिर से वही चीज़, that one has to be very honest, one has to be efficient. Honesty बिना efficiency के again it is not of use. ये जब तक काम नहीं होगा, जब तक सर्विस डिलीवरी नहीं होगी, जब तक आपके होने से कोई फायदा नहीं होगा, तब तक नहीं तो आपका जो काम है वो तो कोई एल्गोरिथम भी कर लेगा, जो रूटीन वाला काम होगा. सो इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करें. एंड जिस चीज़ के लिए, जिस नीयत के साथ आप लोगों ने शुरू किया है, और उसी नीयत के हिसाब से अल्लाह ताला में गाइड्स यू इन टूवर्ड्स सक्सेस, और आप अपने लिए भी, अपने माँ बाप के लिए भी बाइस रहमत और बाइस जन्नत रहें. और let everyone and this academy and the places where you come from, they be proud of what you do, not only with respect to the exam but also in your life. Thank you.